नमस्कार दोस्तों और जय हिंद। आप सभी को स्वागत है इन माय चैनल 1971 वॉर बुक सीरीज। तो दोस्तों 1971 वॉर में बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में आईएनएस विक्रांत का जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है वो तो आपको पता है कि एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रंस जो थे, नेवल एयर स्क्वाड्रंस, उनका जो स्ट्राइक ऑपरेशंस ऑन द पोर्ट्स ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, कैसे ईस्ट पाकिस्तान नेवी को पूरा का पूरा तबाह कर दिया था, इसके बारे में भी हम बात करेंगे फ्रॉम अ मैन हु वाज प्रेजेंट ऑन द आईएनएस विक्रांत हिमसेल्फ। ही वाज एक्चुअली अ वेपन्स लोडर एंड इन द एक्सप्लोसिव्स डिपार्टमेंट, arming the naval air squadron aircrafts like the Alizi and the Seahawk, and he had with his own eyes seen the naval combat himself. During the war, he was actually C1 QA3 serving in the INS Vikrant and was basically a sailor. So let's welcome Mr. Balbir Singh to our program today. All well, and my good morning to the entire team of 71 War Series. Sir, there is no entire team, this is just me. Oh, only for you. Okay. It's me doing this by myself. Okay. So thank you, sir, for coming here today and speaking about 71 war. So मेरा सर सवाल शुरू होता है from the initial part of your life. आप कैसे भारतीय नेवी ज्वाइन किए and how was your life before joining the navy? नेवी के करियर शुरुआत करने से पहले कैसा था सर आपका? Okay. Actually, my background is farming. I belong to a agriculture family, and my life was very tough. And I was a very good sportsman in the school also, my middle school and the high school also. And on that basis only, I joined Indian Navy as an athlete. अच्छा एथलीट, अच्छा अच्छा। Athlete. और आप सर ऑफिसर में you joined as an officer or No, sailor? I joined as a sailor अच्छा अच्छा in 1968. I joined अच्छा अच्छा in the month of April. अप्रैल में, ठीक है। ओके, Now, my first school was BND school in Cochin. कोचिंग, अच्छा After about 8 months training, I was posted to the ship INS Talwar. तलवार, Sorry, अच्छा, Tirsul. त्रिशूल, अच्छा That time. And after 1 year, I went to the gunnery training. अच्छा अच्छा Gunnery training means where we learn about the gun's mechanism and the explosive and on the operation of all guns. अच्छा। तो And after ये that, जो त्रिशूल है सर, आई थिंक वो तो एक कॉर्वेट जहाज है, राइट सर? Tirsul was warship. It was frigate. फ्रीगेट, अच्छा अच्छा फ्रीगेट, ओके Frigate means anti-air and anti-submarine ship. It was. अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। तो वहाँ पे आपका काम क्या था सर? छोटा, अगर if you can speak of it a little bit. वहाँ पे तो पहला फर्स्ट टाइम तो आफ्टर द इनिशियल ट्रेनिंग बस यही था टू नो अबाउट द शिप, अच्छा हाउ टू ऑपरेट द शिप मीन्स टू स्टीयर द शिप ऑन द व्हील्स अच्छा सर, and to know about the ship, the marking of the ship, अच्छा and wherever the whatever the operational functions are there. ओके, And after about 1 year, then we were sent to another training, that is gunnery training. गनरी ट्रेनिंग, It is, it was also held in Venduruthi Gunnery School. ओके And yeah, ठीक है। तो 3 साल, 1971 तक 3 साल आपका सर्विस था और आपका प्रमोशन हुआ था सर इन द मिडिल हाँ। ऑफ दिस? सेकंड प्रमोशन हुआ था. अच्छा, It was from C2 से लेकर फिर C1. C1, अच्छा C1. So my trade was QA, Quarter Armorer Third, अच्छा, from the gunnery school. The function वही था, the operation of small and big arms and the explosive expert. ओके। जी. तो जैसे सर आपने बताया था 1971 में आप आईएनएस विक्रांत, मतलब हमारे Yeah. एयरक्राफ्ट कैरियर था, उसमें आप जी। तैनात थे सर। हाँ तो जी. मेरा जो सवाल है, वहाँ पे हाँ तो जी. कोई
हथियार ऐसा नहीं था, लाइक बिग गन्स जो फ्रिगेट्स या कॉर्वेट जहाज में होते हैं, वहां पे सर आपका काम क्या था? उसमें जो 45 mm की गन्स थी, फोर अच्छा, एंड फोर एंटी एयरक्राफ्ट गन्स। ओके ओके। हाँ जी। एंड द एक्सप्लोसिव को देखना वहां पर, एंड स्मॉल आर्म्स बहुत थे आर्मोरी में। आर्म का उधर एक बिग डिपो है, काफी बड़ा, ह्यूज आर्मोरी। तो आई एंड माई टीम अंडर द सुपरविजन ऑफ द ऑफिसर, we used to look after that armory, how to manage the all explosive bombs, rockets, hand grenades, etc. This was our work. And how to load the ammunition in the guns, how to correct them, their mechanism, and how to load the ammunition into the planes. This was our function. Yes. तो जैसे मुझे पता है सर, दो नेवल स्क्वाड्रंस थे, तो उसमें से आई थिंक उनका जो मतलब एयरक्राफ्ट था, दे वर मोस्टली अलीजी एंटी एयरक्राफ्ट एंटी सबमरीन प्लेन और हॉकर सी हंटर। हाँ, Seahawk. Seahawk, right. हाँ, Seahawk was the fighter plane, and then LEJ was the patrolling plane. पेट्रोलिंग प्लेन, अच्छा। It used to patrol the area to recce and to find out whatever the problems are there. And there used to be one helicopter, Sea King. सीकिंग, अच्छा Sea King. It was used for it was anti-submarine. अच्छा अच्छा। Yes. तो आपका सर यहाँ पे मतलब यू मोस्टली फोकस्ड ऑन वर्किंग विद द सी हॉक एयरक्राफ्ट, राइट सर? Correct. अच्छा, तो The LEJ also, LEJ was used for bombarding like wherever the mines are suspected in the sea. तो उसमें बम्स लोड करके बड़े बड़े उसको आइडेंटिफाई किया, वेयर इज द बम्ब, माइंस मींस अंडर वाटर माइंस, तो उसको एक्सप्लोर कर देते उससे डाल के। तो उसके भी रोल था फाइट में, उसमें एलईजे में। अच्छा अच्छा और उसको लाइटिंग करने के लिए नाइट में, अगर सपोज उन दिनों ऐसी डिवाइस नहीं थी कि रात में अटैक किया जा सके, तो एलईजे को हम लीपस बम डालते थे, उसमें लोड करते थे। लीपस बम अच्छा अच्छा वाज यूज फॉर लाइटिंग दैट एरिया, उसको चांदना करने के लिए, रोशनी करने के लिए। ओके तो उसको पहले वहां डाल के, और फिर हमारे फाइटर प्लेन जाएंगे, उसको देख के नीचे कहाँ है वो बम डालते थे, रॉकेट्स एंड बम। ये था। नाइस नाइस, अच्छा। और आप ये सब हथियार मतलब यूजिंग दिस हथियार को, मतलब आप ये जहाज को आर्म करते थे, राइट सर? हाँ, वो जहाज में जो स्मॉल आर्म्स है वो तो फॉर इमरजेंसी पर्पस थे, लाइक SLR, स्टेन गन्स एंड हैंड ग्रेनेड्स, क्योंकि वहां पर बोर्डिंग पार्टी भी जाती हैं। सपोज वी कैप्चर एनी शिप एंड वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज इन इट, क्या ये इसमें एनिमी सोल्जर्स हैं, क्या हैं, तो हमको ब्लफिंग तो नहीं कर रहे, तो उसमें जाके बोर्डिंग पार्टी जाती थी, उसको चेक करते थे। तो वहां पर देन वी कैरियड दी स्मॉल आर्म्स ऑल्सो, अच्छा 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 तो उसमें क्लाइंब करके और फिर उसको चेक करके और उसके पेपर्स वगैरह इन द ब्रिज, इन द कैप्टन से इंक्वायरी करके फिर वी वर बैक। स्मॉल आर्म्स वहां पर प्रयोग थे। ओके। तो आप INS विक्रांत में शिफ्ट कब हुए सर? एट व्हाट टाइम? In 71, 71? after the gunnery training, I was posted in INS Vikrant 71 April. अप्रैल में, अच्छा। तो जैसे मतलब इतिहास बताता है, जी। 26 मार्च से ही ईस्ट पाकिस्तान में बहुत खलबली हो रहा था, हाँ हाँ, यस। तो आप लोगों को कुछ पता चला या मतलब हाँ, at that time? नहीं, हमें कुछ पता नहीं था, अच्छा, but only activities were on, like the repair maintenance of the ships. अच्छा अच्छा तो हमको थोड़ा सस्पेक्ट तो हुआ था, एक बिकॉज इट वाज बीइंग डन इन द लार्ज स्केल। ये एकदम क्यों है ऑल ऑफ सडन, ये सब ज्यादा क्यों हो रहा है।
और वो तो पता ही था प्रॉब्लम ऑफ द बांग्लादेश. So in March, our ship Vikrant was sent to the अच्छा अच्छा. dry dock for the repair and maintenance. तो जून में वो बाहर आ गया आफ्टर द रिपेयर एंड मेंटेनेंस. उसके बाद फिर इट वाज सेंट फॉर द ट्रायल टू चेक द मशीनरी, इट्स स्पीड एंड द फंक्शनल ऑल पार्ट्स ऑफ दिस, वेदर इट इज फंक्शनिंग वेल और नॉट. तो वहां पर जाकर आफ्टर 2 days सेलिंग we returned back to Bombay, and then the ammunitioning work was done. Means from the high command order was that load the ship with the ammunition, अच्छा. and it was heavily loaded. ओके. बड़े लार्ज स्केल पे, उससे पहले कभी हमने ऐसा देखा नहीं था. अच्छा, मतलब ये पूरा एमिनिशन लोडिंग सर कब हुआ था? ये हुआ था लास्ट जून एंड फर्स्ट वीक जुलाई में. मतलब अगर मेरा मेरा एक सवाल है सर, लाइक इफ सो हाँ. मच हेवी लोडिंग इज डन ऑन अ शिप, तो हाँ जी. इंडियन अथॉरिटीज, इंडियन नेवी को पता था या प्लान था कि कुछ एक्शन में वो लोग जाने वाले हैं? आई गेस नहीं, वो डिक्लेयर ओपनली नहीं था, नहीं था. बट इट वाज अंडरस्टूड. वो तो इट वाज केप्ट सीक्रेट. हाँ. Even it was not known to the captain of the ship openly, अच्छा. but he was knowing that a problem is created there, so there is going to happen something. राइट. हाँ. तो अच्छा, और सर मेरा एक और सवाल था कि हाँ आपने जी. रिपेयर्स जो किए थे जी. विक्रांत का, ये मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स आप चेक किए थे व्हेन द शिप वाज एट ड्राई डॉक? क्योंकि आपको तो आई मीन एज पर हिस्ट्री यू हैव टू ट्रैवल टू बे ऑफ बंगाल, क्लोज टू जी. चिटागोंग पोर्ट एंड दोस एरियाज. हाँ, हाँ, हाँ. डिस्टेंस जाने के लिए आपको सब कुछ चेक करना पड़ेगा. तो क्या क्या चेकिंग्स होता है सर? उसमें the maintenance of the function of the machinery, its capacity of sailing, यानी मशीनरी का फंक्शन तो it was done by the dockyard people, ओके. and our engineering team of the ship, अच्छा. it was checked, electronic also, the generators also, and the big machines also, the which propel the ship, वो सब चेक किया गया था. एंड आर्मामेंट भी वो आए थे. फिर उसके बाद में देन वी ऑल्सो चेकड इट. बाहर ओपन सी में गए हम बाद में, एंड देन वो उसकी फायरिंग कैपेसिटी चेक की गई, क्योंकि रेडार एंड जो भी ये कम्युनिकेशन सिस्टम है वो चेक किया गया. देन वी रिटर्न, जब देखा हम इट इज ओके, तब फिर हम वापस आए थे उसको चेक करके कि इसकी स्पीड इज द मेन फंक्शन, क्योंकि एरोप्लेन 35 स्पीड होनी चाहिए टू फ्लाई फॉर द एरोप्लेन. अच्छा. तो वहां से टेक ऑफ के लिए एरोप्लेन के 35 नॉटिकल माइल स्पीड होनी चाहिए, अदरवाइज टेक ऑफ इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि उसको थ्रस्ट देना होता है ना, तो सामने से हवा आनी चाहिए, तो उसको लिफ्ट करता है, फिर वो हवा ऊपर उसको लिफ्ट मिलती है. जहाज का स्पीड ही होना चाहिए 35 नॉटिकल माइल्स. हाँ जी, फॉर टेक ऑफ, फॉर एनी प्लेन अच्छा. फ्रॉम द शिप. एक और चीज सर, जो प्लेन जब लैंड करता है, आई मीन मैं देखा है विक्रांत के मतलब जी. रनवे पे लैंड कर रहा है, तो वहां हाँ. पे डीएक्सेलरेशन का भी कुछ मतलब हुक्स या ये सब चीजें लगा होता है हाँ, इमीडिएटली, ये सब भी चेक किया गया? वो एक हाइड्रोलिक वायर थी, वायर थी, अच्छा. और 6-7 वायर थी जो हाइड्रोलिक प्रेशर से ऑपरेट होती थी. ओके. वो बहुत टाइट नहीं थी, लेकिन हाइड्रोलिक प्रेशर से उसका हुक था, उसका एरोप्लेन का जो हुक था वो पहले डाउन करेगा और उसके अंदर वो उसमें फंस जाएगा, वो वायर में. एक में अगर एक में पहले में नहीं फंसा, दूसरे में फंसेगा, तीसरे में फंसेगा. अगर नहीं फंसा तो फिर वो फिर टेक ऑफ कर जाएगा, चला जाएगा. अगेन इट विल ट्राई. तो लेकिन कहीं ना कहीं वो जरूर से हुक होएगा. अच्छा. तो जब वो हुक हो गया तो उसका एकदम जोल्ट लगा, प्रेशर होता है उसमें, लेकिन हाइड्रोलिक प्रेशर उसको धीरे धीरे प्रेशर को उसको रोकता है. अच्छा. उसको पुल किया, एकदम नहीं, ऑल ऑफ सडन तो टूट जाएगा एरोप्लेन, हाँ हाँ हाँ. है ना.
तो उसको इतना प्रेशर होता है कि उसको पुल करके ले जाता है, एंड फिर उसको ब्रेक लग गए, रुक गया, देन हुक इज लेफ्ट, हुक को छूट जाता है ऑटोमेटिकली, और वो उसका जो डिवाइस होता है, हुकिंग डिवाइस, वो ऊपर हो जाता है। तो मेरा एक और सवाल है सर, ये लोग आप जी। मतलब आप लोग ये सब चेक किए थे, और जो पायलट्स थे, पायलट्स भी तो टेस्ट रन में गए होंगे, राइट सर? नहीं, पायलट तो सब उसपे अबाउट 25 प्लेन ऑलरेडी थे इन द हैंगर, अच्छा अच्छा। एंड पायलट्स का जो अकोमोडेशन है उधर वो पायलट रूम्स हैं। तो हम तो उनका, हमारा काम तो चेक करना है अपना, लेकिन पायलट्स का वो अपने प्लेन को चेक करना है। उसके अंदर वो द यूज ऑफ वेपन्स, तो वो ड्रॉप करके देखे गए, व्हेन इट वाज ओके, तब वो उसमें वापस आए। और उसमें एक बहुत बड़ी क्रेन है, और दो क्रेन है, अगर प्लेन को उठाना पड़ जाके इधर से उधर, कोई फॉर सम एनी अदर केस द प्लेन इज नॉट ऑपरेटिंग, तो वो उसको उठाती। एक बहुत बड़ी फिक्स क्रेन थी जो जमीन से, हार्बर से नीचे से उठा के भी उसको ऊपर रख लेती है, बिग क्रेन थी। तो पायलट्स का तो काम था उसको अपने प्लेन को ऑपरेट करना, और लिंक विद द कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन से लिंक करना उसको। ओके। हाँ जी। तो ये सब टेस्टिंग के बाद जी मतलब इस पाकिस्तान में तो इंस्टेबिलिटी बढ़ रहा था, जी। आप लोग आई थिंक सितंबर में ही निकल गए थे फॉर द ऑपरेशन, राइट सर? आप हम तो नहीं, हम तो जुलाई में निकले थे, अच्छा अच्छा, जुलाई जुलाई में, एंड वी वर सपोज टू बी बैक ऑन 5th फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ 15th अगस्त। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन ट्रायल से बाद में देन वी वर रिटर्निंग टू द हार्बर बॉम्बे में, लेकिन समथिंग हैपेंड, देन वी वर आस्क्ड टू सेल बैक। वहां से something, they felt something wrong about the Ghazi submarine. अच्छा अच्छा, गाजी, पीएनएस गाजी आ रहा हाँ, था। हाँ, it was detected Bombay off harbor में, harbor in the sea. Then we were sent back कि आप जाइए वापिस, don't come back here. अच्छा। उसके बाद फिर हम तो गोवा, कोचीन, अरे घूमते रहे, and वो submarine was after us even during the our sailing, when the ship was maneuvering and practicing. The underwater, you can say that device called doom, उसको डूम बोलते हैं, तो उसने उसको डिटेक्ट किया पनडुब्बी को, अच्छा अच्छा। and immediately at night the entire ship's company was ऑन एक्शन स्टेशन। तो सब एक्शन स्टेशन पे आए और रात भर बम्बार्डमेंट करते, इवन ऑल द शिप्स एंड हेलीकॉप्टर्स, लेकिन वो कहीं फिर पता नहीं पड़ा, वो डिसअपियर समवेयर। अच्छा अच्छा। तो हाँ, ये सब आप हो रहा था कब? I mean, at what time? इन सितंबर, जैसे आपने कहा ना, इन सितंबर इट वाज हैपनिंग, जुलाई सितंबर। और आप लोग तब तक विशाखापट्टनम पहुंचे थे या स्टिल गोइंग? नहीं, हम लोग कई जगह, हमारा मैनोरिंग था, हम लोग घूमते रहते थे, क्योंकि हमको इंफॉर्मेशन था टू द शिप, कैप्टन ऑफ द शिप, उनको एक एनवेलप दिया गया था, आप सब जानते होंगे, वह टाइम में तो मैसेज जो था वो रेडियो से नहीं भेज रहे थे, एनवेलप जो हेलीकॉप्टर द्वारा आता था, उसमें एक ही एनवेलप में बहुत सारे एनवेलप, ऊपर लिखा था ओपन द एनवेलप सो एंड सो टाइम, उसको खोलते थे, एवरीथिंग वाज सीक्रेट, उसमें जो भी ऑर्डर उसमें मिलता था कि यू सेल टू मैड्रास और एंटर हार्बर विशाखापट्टनम, जो भी उसमें होता था वो किया जाता था। इवन मैंने यही महसूस किया, हमने आकर अपना शिप को सिक्योर किया जेट्टी पर, और उसके 2 घंटे के बाद फिर उसमें वो जो एनवेलप था उसमें फिर लिखा था ओपन द दिस एनवेलप सो सो टाइम। 2 घंटे में खोला, एग्जैक्ट टाइम पे उसमें था यू सेल फ्रॉम हियर, कास्ट ऑफ योर
शिप फ्रॉम हियर, तो कास्ट ऑफ हो गया मूरिंग से, फिर गए, उसके बाद फिर 10-5 घंटे में फिर एंटर हार्बर। तो लाइक दिस हम लोग करते रहे। कोई रेडियो से क्लीन सिग्नल नहीं आ रहे थे, ओनली उस पे वी वर ऑपरेटिंग, वी वर मूविंग ऑन दैट बिहाफ। जो एनवेलप में जो ऑर्डर थे हमारे, और सब हम लोग सब फेडअप थे कि व्हाट इज हैपनिंग। क्योंकि जब हम जुलाई में निकल गए थे, अगस्त में, उसके बाद फिर वी नेवर रिटर्न, वो फरवरी में बाद में आए ओनली, बस उसके बाद फिर हम तो शिप जो था ये वेस्टर्न कमांड पे, वेस्टर्न कमांड का ही बिलोंग करता था, लेकिन इसने दोनों तरफ फंक्शन किया, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न, और इसलिए हमको 2 स्टार मिले, ईस्टर्न स्टार, वेस्टर्न स्टार। हाँ, दोनों, क्योंकि दोनों साइड पे इसने ऑपरेट किया। तो वो अब ये रहा, फिर हमें जैसे ऑर्डर आता था, अपना जो विशाखापट्टनम का हार्बर तो नैरो है, फॉर विक्रांत के लिए नैरो है, और एंकर पे रहता था। तो वहां से ही जिसको बाहर जाना, सेलर्स गोइंग फॉर परचेजिंग एंड फॉर जो भी अपने वेजिटेबल वगैरह वहां ही करते थे, लाते थे। उसके बाद फिर ऑर्डर आएगा सेल बैक टू मद्रास या टू कोचीन, इस तरह से प्रैक्टिस करते रहे थे। बट इट वाज पक्का था, इट वाज श्योर कि द गाजी वाज आफ्टर अस, इट वाज डिटेक्टेड, और सबको पता था कि ये इसके पीछे लगी है। फिर हमें इन्होंने अंडमान निकोबार भेज दिया। अंडमान निकोबार में हम रहे, वहां पर भी एंकरेज में थे, एंकरेज पे रहे, वहां खड़े थे। लेकिन जो हमारे बॉडीगार्ड शिप थे, देयर वर अदर मैनी फ्रिगेट थे, ब्रह्मपुत्रा, बेतवा, वो पेट्रोलिंग करते रहते थे। दूसरे शिप पे पैटिया क्लास शिप्स, टोटली एंटी एयर थे, वो उनमें था, तो वो पेट्रोलिंग पर रहते थे। बट विक्रांत वाज सेफ, उनका काम था विक्रांत को सेफ रखना वहां पर। हाँ जी। तो अंडमान, तो मैंने जैसे सुना है अंडमान निकोबार से आप वापस आए ही नहीं, अंडमान निकोबार आप पहुंचे कब? अंडमान निकोबार में हम ये पहुंचे समवेयर अक्टूबर में पहुंचे। फिर ये माया बंदर और पोर्ट ब्लेयर साइड में रहे, फिर सेलिंग किया, प्रैक्टिस करते रहते थे, क्योंकि हमें या अथॉरिटीज को ये विक्रांत को छुपाना था। इनको रूमर देनी थी कि विक्रांत इज डोंट नो वेयर इज विक्रांत, ताकि पाकिस्तान थोड़े ब्लफ में हो जाए कि विक्रांत तो लॉस्ट हो गया, कहीं डूब गया, क्या हुआ, या गाजी ने काम कर दिया। तो इन्होंने एक वहां पर पोर्ट कार्नवालिस है, गूगल पे मिलेगा, वो हार्बर है, क्लोज्ड हार्बर। तो पोर्ट कार्नवालिस में हमने शेल्टर ले लिया। तो अब ये एक वार अफेयर्स हैं, पाकिस्तान में हो गया भी, विक्रांत तो डिसअपियर हो गया, एंड इट इज गोन, नोबडी नोज वेयर इट इज, क्योंकि है ही नहीं कहीं मैप पे। तो उसके बाद हम लोग वहां चुप रहे अबाउट ए वीक, और एक दिन ऑन 4th December the captain announced that I will talk to the ship's company after your dinner, 8 o'clock you should be seated in the mess. So मेरा mess 29 था। All QAs, quarter armorers जो थे, of my trade fellows, they lived in mess number 29, हमारा वही mess था। तो we sat quietly and were waiting what to say, क्योंकि ये तो हमको सेंस हो गया था, we sensed it that something is now serious. Then Captain S. Prakash, जो महावीर चक्र मिला उन्हें बाद में, रिटायर फ्रॉम वाइस एडमिरल, उन्होंने सीधा अनाउंस किया कि डू यू हियर देयर इज कैप्टन ऑफ द शिप स्पीकिंग, वार इज डिक्लेयर्ड। उन्होंने कहा, हमें उससे पहले कोई पता नहीं था, हमारी चिट्ठियां भी नहीं आती थी। वार इज डिक्लेयर्ड
And tomorrow, now we are just going to sail to Bay of Bengal, and tomorrow we will attack East Pakistan. तो सब इतना खुशी हुआ सब सेलर्स को, पूरा पूरा जहाज में एकदम बहुत ऊंची एक पूरा रोर धार की तरफ हो गया। और मजा आ गया, मजा आ गया, क्योंकि हम लोग बड़े फेडअप थे। हम लोग 5 मंथ से ये थे कि हम लोग ये कहते थे कि भाई लड़ाई हो जाए, या तो ये हो जाए, बस हम परेशान बहुत थे। जहाज को सिक्योर करना, फिर चले जाना, फिर आना, हमारे कहते हैं नाक में दम हो गया था। तो हम सब वी ऑल वर डिमांडिंग वार। और जब वार का डिक्लेयर हो गया ना, हम बहुत खुश हुए, क्योंकि वार में कभी भी कोई भी सेलर ये सबसे खुश होता है, चाहे जवान हो, इसमें वार में सबसे खुश रहता है। ये कोई बंधन नहीं, बस मारना मारना। हाँ, बस सेब के उसके देन कुछ देर बाद में कैप्टन ने ऑर्डर दिया, लिफ्ट द हीव द एंकर्स। एंकर्स को उठाया और फिर सेल्ड आउट और पहुंच गए। फिर अगले दिन नेक्स्ट डे वी रीच बे ऑफ बंगाल। तो हमको ऑर्डर था कि कोई भी उधर मिले सबको वार्निंग दो, अगर नहीं सुनता है तो खत्म कर दो। तो इन्होंने जाती दे रिलीज द मैसेज कि क्लियर द हार्बर विद इन 4 or 5 आवर्स। ये कौन सा हार्बर था सर? ये क्लियर द हार्बर बे ऑफ बंगाल, ये वही हार्बर था अपना कलकत्ता के ऑफ, ये सब कई हाँ बे ऑफ बंगाल, ईस्टर्न साइड बे ऑफ बंगाल, ईस्टर्न बे ऑफ बंगाल में कई लीव द हार्बर। वो चटगांव का भी था, कुछ भी था उधर, उनको बोल दिया कि लीव द हार्बर। तो कुछ जहाज वहां से चलने लगे। उसके बाद कुछ दिन बाद मॉर्निंग आई एम विटनेस टू इट कि 2 boats did not obey the order and they were enjoying, और वो इन्हीं की थी, एनिमी की बोट थी, लेकिन इन सिविल क्लोथ्स, उसकी वो रैकी कर रही थी, स्पाइंग। तो इनको कहा, इन्होंने सुना नहीं, तो इनको ऑर्डर दिया गया बेतवा शिप को, ब्रह्मपुत्र को शायद, कि इसको बम्बार्डमेंट कर दो। तो उनको 2 सेल मारे अलग अलग दोनों को, तो वो दोनों सिंक हो गई, डूब गई। उसके बाद वो अबाउट 21 सेलर जो बचे थे, देवर प्लेन क्लोज, उनको हमारी बोट लेके आई एंड देवर केप्ट ऑन बोर्ड विक्रांत। वन वॉज बैडली इंजर्ड, तो वो तो मर गया था एक ही रात में। फिर उसको समुद्र में फेंक दिया, तिरंगे में लपेट के फेंक दिया था। लेकिन वो तो पाकिस्तानी सेलर था सर। हाँ, बस इनको फिर भी हमारा पास वही था कि उनको फेंक दिया। पाकिस्तानी थे लेकिन उनको उसमें फेंक दिया समुद्र में लपेट कर। हाँ, नहीं सोचा भाई, तिरंगे में लपेट के फेंक दिया। बस इन्होंने तिरंगे में लपेटा, उसको ऑनर तो देना ही था। अच्छा, उसके बाद फिर उनको तलाशी लिया तो उनपे करेंसी निकली, पाकिस्तान की करेंसी थी, उसमें 2 ऑफिसर्स भी थे, तो उनको ऑफिसर्स मेस में रखा गया। बाकी आफ्टर 4 days उनको गन पॉइंट में रखा गया। देन आफ्टर 4 days वहां से उनको डिसम्बार्क कर दिया, भेज दिया गया था टू मद्रास और टू कलकत्ता समवेयर। मतलब देवर देन आफ्टर दैट देवर लाइक प्रिजनर फॉर वार, उनको भेज दिया था। जंग के बारे में बता सकते हैं आप कि आपका हिस्सा हाँ और विक्रांत का पार्ट क्या? हाँ। अच्छा, एक शिप और था वहां मधुमती नाम का, तो उसने हार्बर नहीं छोड़ा, स्पाइट ऑफ वार्निंग। उसके बाद उन्होंने ऑर्डर दिया हमारे सीओ ने कि इसको रॉकेट से, इसमें रॉकेट मारो इसके। तो अपना हमारा एरोप्लेन सी हो गया, उसको एक रॉकेट मारा साइड में। तो वो लोग जो भी थे उसमें सेलर ही थे मुझे लगता है, बट देवर इन द मर्चेंट नेवी के जहाज में थे। उसका नाम मधुमती शिप था। हाँ, तो उसको दे लेफ्ट द शिप, अबेंडन द शिप, और वहां से भाग गए। वो उनको पता लगा कि ये म्यांमार की हिल्स पास में चमक रही थी हमें, वो उधर जाके भाग गए थे। हाँ, तो उसको हमने 3-4 दिन देखा घूमते हुए। फिर आफ्टर 4-5 days we went. I was also
इन द पार्टी ऑफ बोर्डिंग पार्टी में, पार्ट ऑफ बोर्डिंग पार्टी, वहां देखा तो वहां पर उनका एक इंजीनियर मरा पड़ा था इन द इंजन रूम, क्योंकि वहां रॉकेट वो वहीं लगा था, बट वो शॉक से मर गया था, उसको कोई इंजरी नहीं थी। हाँ, वो शॉक से मर गया था। फिर उसका पूरा देखा गया, कोई सेलर नहीं था, जो बोट्स थी ना वो भी कैप्साइज यानी लटकी पड़ी थी, कुछ उनमें फॉल्ट हुआ पड़ा था, यानी हैफेजर्डली दे अबेंडन्ड द शिप एंड दे रैन टू सम हिल्स एंड ऑन। उसके बाद फिर उसको भी भेज दिया गया टू अवर सम, शायद मद्रास भेजा या कहीं कलकत्ता भेज दिया गया था। तो वार टाइम में एक और शिप था उनका, जिसके अंदर आर्मी को ले जा रहे थे सीक्रेटली इन द प्लेन क्लोथ। तो बोर्डिंग पार्टी गई किसी और दूसरे जहाज से, शायद बेतवा से गई थी। उन्होंने पता पड़ा ना, जब देख के उनका उन्होंने पता लगा लिया कि इसमें तो सोल्जर हैं, तो उसको दबो दिया था, वहां पर बम्बार्डमेंट करके दबो दिया था। ये सब सोल्जर्स जो थे सर, they drowned? हाँ, राइट, वो हुआ था। और उसके बाद जो लड़ाई हुई थी, तो रात भर और दिन भर जो है बम्बार्डमेंट चलता था। हमारा काम था लोड करना, और पायलट बम्बार्डमेंट करके आ जाते थे, ये था, और सेलिंग कर रहे थे। तो आफ्टर अबाउट 6th डे ऑफ वॉर हमने, बिकॉज आई यूज्ड टू बी ऑन द फ्लाइट डेक, मैं और पार्टी हमारी सब, वी वर टीममेट्स, जिसको हम लोग एक्सप्लोसिव पार्टी थी। फ्लाइट डेक हमारा एक्शन स्टेशन फ्लाइट डेक था, तो वो एक्सप्लोसिव का काम था उनका, उनमें लोड एंड अनलोड करना। तब हमने सभी ने देखा अबाउट 6 o'clock और 6:30 वन सबमरीन अपीयर्ड बिहाइंड विक्रांत। उसको मेंशन ही नहीं किया अभी तक, वार में किसी ने उसको बताया नहीं कि वो सबमरीन भी आई थी। मैंने अपनी खुद आंखों से देखा, जितने भी थे हमने शोर मचा दिया। उसके पेरिस्कोप दिखे हमें, और उसका जो ब्रिज है ना वो भी इतना ऊपर दिखा, तो सबने शोर मचाया, पनडुब्बी सबमरीन सबमरीन। तो इमीडिएटली जो पायलट था हमारे सी हॉक का, उसने सी हॉक को उड़ाया, उसी और स्पॉट पे जाके इतने में उसके जैसे वो गया, क्योंकि इमीडिएटली ने टेक ऑफ कर लिया, तो वो सबमरीन इमरजेंसी सबमर्ज कर गई, इमरजेंसी में डाउन गई। तो वहां पर फिर पायलट ने उस पर बम गिराए, जो भी उसके वो थे टाइप ऑफ बम्स एंड डेप्थ चार्जर, वो गिराए। लेकिन उसके बाद में उसका कोई पता नहीं पड़ा, बस एक SOS छोड़ा था उसने। हाँ, SOS छोड़ा था, फिर भी उसको जो डिजास्टर में हेल्प इन डिजास्टर, लेकिन उसको वार में कोई मानता नहीं है। मतलब यहाँ तक पाकिस्तानी सबमरीन था? वो पाकिस्तानी ही सबमरीन था। हाँ, और वो लेकिन और वो ईस्ट पाकिस्तान के पोर्ट से निकला था? वहां से सेल करके आया उधर, क्योंकि उन्होंने फुकरी को मार दिया था। वो तो वेस्टर्न साइड पे सर, हाँ, वेस्टर्न में मार दिया था। तो एक गाजी और एंड दिस वन अनदर सबमरीन, ये एक्टिव थी। बाकी पाकिस्तान का कोई शिप हार्बर से बाहर निकला ही नहीं था, उनको इन्होंने ही ड्यूटी पे लगाया हुआ था। एंड ये पूरे डिटरमिन्ड थे इंडियन नेवी को नुकसान करने के लिए। तो वो सब मैंने अपने आंखों से देखा है, और जो भी सेलर्स थे ऊपर, सब ने दौड़ के उधर गए साइड में, पनडुब्बी सबमरीन। तो फरदेसी ये सी हॉक ने, एलिजे ने अपना जो एरोप्लेन था, इसने सी किंग उसने टेक ऑफ किया, वहां बम्बार्डमेंट किया। लेकिन उसके बाद ये सब सोते थे, वो मर गई, लेकिन मरा नहीं, वो एस्केप कर गई। हाँ, उसका मलबा दिखाई देता अगर वो मरते तो वहां ना, उसका बाद में। सबमरीन, आई थिंक सबमरीन जब डिस्ट्रॉय होता है तो एक ऑयल स्लिक निकलता है। हाँ, ऑयल से निकलता है, या कुछ जो लूज इक्विपमेंट होते हैं वो निकल जाते हैं, फ्लोटिंग इक्विपमेंट डैमेज के बाद वो दिखाई देते हैं। और कुछ दिन में उसकी डेड बॉडी हो तो वो भी बाहर निकल सकती हैं। तो ये हमने देखा, और बम्बार्डमेंट होता रहा, और हमने उनके आई थिंक जो भी मर्चेंट शिप थे 15-16 उनको कैप्चर करके फिर हम जो भी आता था उसको कलकत्ता साइड भेजते रहते थे। तो ये वार में देखते रहे। वार अब 16th को सीज फायर हुआ, 16 दिसंबर को सीज फायर हो गया। उसके पहले वार कंटिन्यूस था, बम्बार्डमेंट मोस्टली रोल था, नेवी का रोल जो था
वो एरोप्लेन का ही था पायलट, बाकी सब पेट्रोल कर रहे थे। उनको हमने उसको बैरिकेड कर दिया था ताकि उधर से कोई भाग ना सके, ना उधर से कोई हेल्प आ सके, यानी ब्लॉक कर दिया था पूरा बे ऑफ बंगाल को। ये मुख्य काम था। और 16 को सीज फायर हो गया। फिर हमने सुना 15 को सुन लिया था कि 7th फ्लीट आ गया है, अच्छा 7th फ्लीट आ गया। हाँ, तो वी ऑल वर शौक थे कि भाई ये क्या हो गया, कि क्योंकि ये तो पता था 7th फ्लीट का हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, वो तो न्यूक्लियर फ्लीट था। पर उसके बाद फिर एक डिस्ट्रॉयर रशिया का आया जो काफी ऑफ था, अच्छा लेकिन वो रडार पे दिख रहा था। हाँ दिख रहा था कि एक डिस्ट्रॉयर रशिया का है। इट वाज लीडिंग द सबमरीन फ्लीट, अंडर वाटर फ्लीट ऑफ रशिया। ओके हाँ, रशिया का ये अंडर वाटर फ्लीट जो है सबमरीन को लीड कर रहा है। लेकिन जैसे वो आते उससे पहले ये ऑलरेडी वहां थे अंडर वाटर, अपने अलग रास्ते से आए। फिर वो उनको देख कर उनको पता पड़ गया, जब उन्होंने मैसेज भेजा कि सर रशियन फ्लीट इज ऑलरेडी देयर। तो उन्होंने फिर उसको बुला लिया, उन्होंने फिर उसको ये कह दिया कि यू विथड्रॉ, यू सेल बैक। तो 16th इवन ऑन 16 दिसंबर आर्मी फिर भी कर रही थी शूटिंग आउट चल रहा था वहां पर। तो इन्होंने कंप्लेन दिया ईस्टर्न पाकिस्तान के जो अथॉरिटीज थी, उन्होंने कहा जी अभी तो ये सीज फायर हुआ नहीं है। तो अमेरिका का एक प्लेन आया जो कि हमारे शिप के बहुत ऊपर गया, क्या जो मेरे ख्याल से 15-16 किलोमीटर ऊंचाई पर होगा। इट वॉज विजिबल लाइक ए स्टार। वो उनका स्पाई था कि वो देखने गया था टू मेक श्योर वेदर द सीज फायर इज ओबेड और नॉट। उनको देखे तो फिर सीज फायर करना पड़ा। फिर वहां से प्रेशर भी था अमेरिका के सीज फायर। तो उसके बाद वो सीज फायर हो गया। फिर हमको ऑर्डर दे दिया कि ठीक है सीज फायर हो चुका है एंड दे हैव सरेंडर्ड। तो आप एक काम करिए, आप पैरादीप एंटर कर जाइए ओडिशा में। तो वहां पैरादीप में हमने शाम को एंट्री की, 5-4 बजे एंटर किया, शिप को सिक्योर किया जट्टी पर, मूरिंग पर। उसके बाद हमारे ये एडमिरल साहब जो थे, वाइस एडमिरल कृष्णन, ही अराइव्ड हेलीकॉप्टर के साथ। वो बहुत सारी वो लिक्विड लाए उनके लिए, सेलर के लिए, खुशी में। और शाम को सबको ये लिक्विड इश्यू हुआ एंड दी ऑल एंजॉयड, सारा पूरा टोटल सब एंजॉय किया, सब शिप कंपनी ने। उसके बाद वी स्टेड देयर फॉर 3-4-5 डेज, हाँ जी, उस पैरादीप में। उसके बाद हमें काम दिया गया कि आप जितने भी माइंस हैं, क्योंकि माइंस उन्होंने बहुत लार्ज स्केल पे नीचे डाले हुए थे अंडर वाटर। हाँ, वो बहुत डेंजरस होते हैं। वो रास्ता उसमें समझो हार्बर इज टोटली ब्लॉक। फिर एक माइन स्वीपर शिप आया, वो उनको निशान वो स्वीपिंग करता रहा एंड इट स्टार्टेड मार्किंग दैट दिस वन माइन इज हियर। उनके पास मार्किंग होती है, मार्किंग कर देते हैं। एंड विक्रांत का काम था एरोप्लेन से या हेलीकॉप्टर से भेज के बम ड्रॉप करना, उसको डिस्ट्रॉय करना। तो इसी तरह से हमको 1 मंथ लगा था जितने माइन को डिस्ट्रॉय करते थे 1 by 1 डेली। 1 मंथ में पूरा 1 मंथ लग गया था उनको सब डिस्ट्रॉय करा। जब वो क्लियर था हार्बर, जितना भी हो सका क्लियर करने के बाद देन बैक टू कोचीन, मद्रास में आए। मद्रास में हमारा स्वागत हुआ। पूरा फिल्म इंडस्ट्री वालों ने बहुत तगड़ा फीस्ट दिया हमको जेटी में, बड़ा जबरदस्त। हमने अपनी जिंदगी में इतना तगड़ा दावत नहीं खाया कभी। ऑल टाइप ऑफ डिशेस पर देयर, हाँ, वेज नॉन वेज गजब की। और वहां पर उन्होंने एंटरटेनमेंट भी किया। वो जयललिता भी आई थी डांस करने, हाँ, वो लिफ्ट में ऊपर डांस करा उनको जयललिता ने। उस समय बड़ा एंजॉयमेंट किया लोगों ने। फिर मद्रास के बाद हम लोग कोचीन आए, तो वहां पर हमारा एक सीलोड होटल है, उन्होंने भी वेलकम किया, उन्होंने भी हमको बुलाया।
दावत दिया वहां पर। हाँ, फिर बाद में बॉम्बे पहुंचे, बॉम्बे में ताज वगैरह इन्होंने भी हमारे को बड़ा दावत दिया। तो इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग लाइफ हमारी, बड़ी अच्छी जीवन रहा। एंड वॉर और हम, को ऐसे ही देश में वेलकम किया जाता है, ऑफ कोर्स। हाँ, लेकिन ये कहते हैं ना वार में डर लगता है कि नहीं, नहीं, वार के अंदर कोई सोल्जर कोई सेलर डरता नहीं है, उनको बहुत एंजॉय होता है। हाँ, क्योंकि वो फ्री होते हैं मरने मारने के लिए, वाइल्ड हो जाते हैं कि मारना है मरना है बस। ना उनको घर का कोई मतलब है ना कुछ, क्योंकि उन्हें पता है घर का तो हमारी जो सरकार है वो देखभाल करेगी, हम तो इसी के लिए हैं और मजा आएगा हमें तो बस। बहुत एंजॉय, मेरे को याद है उतना कभी एंजॉयमेंट हमने जिंदगी में देखा, हमने नहीं किया जितना करते। बड़े सब एनर्जेटिक थे, लोडिंग अनलोडिंग और रात दिन। आप देखिए 24 आवर हमने 14-15 दिन जो काम किया, रात दिन काम किया, अब स्लीप। पर जैसे ही ऑल्टरनेट ड्यूटी थी, एरोप्लेन आए, वहां से पता पड़ जाता था एरोप्लेन आ गया तो जो हमारा जो दूसरा पार्टनर था खड़ा होता, हमको जगाएगा, चलो भी लोड करो बुलेट। तो बुलेट्स, रॉकेट्स एंड बम 500 पाउंड के बम थे, और हाँ, और 1000 पाउंड के बम थे, तो उसमें लोड होते थे। बहुत और भारी बुलेट, है, देखे हैं ये सब बॉम्ब्स को म्यूजियम्स में, हाँ बहुत भारी है। हाँ, बहुत भारी। लेकिन वो सब मैनुअली नहीं था, नीचे मैगजीन से लिफ्ट से आते थे, और उसको फिर वहां से एक पुल करने वाली एक मशीन है, उस पर रख के हम उसको वहां से लाते थे, और फिर उसके नीचे लगा के उसको हाइड्रोलिक प्रेशर से ऊपर लिफ्ट करके उसको हुक कर देते थे उसमें। वो था सिस्टम। और फ्यूज वगैरह उसमें होता ही है, फ्यूज सेट किया एरोप्लेन के इलेक्ट्रिक डिवाइस से, क्योंकि वो सब चलते ही इलेक्ट्रिक उससे हैं, डिवाइस से इग्नाइट हो जाते हैं। और हमने जब से एम्यूनिशनिंग किया था, तभी से हम बम को फ्यूज सेट करने में लग गए थे। उससे पता पड़ गया था, क्योंकि ये 4 पार्ट्स में रखे जाते हैं बॉम्ब्स, रॉकेट्स। एक तो उसका जो मेन बॉडी है एम्यूनिशन बॉडी, उसके बाद एक हेड होता है, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट होता है उसका फिन्स, पीछे जो टेल लगती है उसको बैलेंस बनाने के लिए, एंड फोर्थ होता है उसका फ्यूज। वो वायर होती है इंसुलेटेड वायर, तो उसको प्लग कर देते हैं और एरोप्लेन के स्विच से कनेक्ट कर देते हैं। जैसे पायलट बटन दबाएगा, फ्यूज वो फायर। हाँ, तो इट वाज द पूरा, हमने पूरा आंखों देखा, पूरा एक एक आंख से देख के करा है, मीन्स देखा है मैंने वार कैसे शुरू हुआ, कब से हुआ। लेकिन वो आपने सही कहा, ये तो पीछे ये मई जून से ही स्टार्ट था, प्रिपरेशन एंड मेंटली प्रिपरेशन एंड ऑल, ये सब। बढ़िया तजुर्बा है आपका सर, बढ़िया। हाँ, ये तजुर्बा रहा मेरा। वंडरफुल, मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए सुनते सुनते। हाँ, लेकिन अपनी जिंदगी में मैंने जितना एंजॉय किया मैंने कभी लाइफ में नहीं किया। लेकिन मैं तो आफ्टर 10 इयर्स कंप्लीशन ऑफ सर्विस, मैं स्पोर्ट्स में था, वहां एथलीट था नेवी का। ये नेवी का है, ये एथलीट था मैं। ये ओपनिंग सेरेमनी इंडियन नेवी एथलेटिक मीट, तो मुझे फिर जॉब मिल गया था बाहर। हाँ, पब्लिक स्कूल में एज ए स्पोर्ट्स हेड, पीजीटी टीचर, तो उससे मेरा बेटर ऑप्शन था। मैंने 10 साल में फिर उनको क्विट कर दिया। अच्छा, ये है मेरा, देखो ये थी मेरी टीम जो थी सब, ये थी। अच्छा, एक मिनट, थोड़ा ऊपर लीजिए, थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे, थोड़ा थोड़ा, हाँ हाँ हाँ, अभी दिख रहा है। हेलो, हाँ हाँ, इसमें एरोप्लेन है पीछे, हाँ, ये तो बॉम्ब्स रखे हैं। सी हॉक। हाँ हाँ, सी हॉक रखा है, रॉकेट से। अरे जो व्हाइट ड्रेस में है, ये हमारे इंचार्ज थे, अच्छा सेकंड लेफ्टिनेंट बख्शी। अच्छा अच्छा। बाकी हम ये टीम थी, एम्यूनिशन टीम थी जो थी हमारी, ये सब थे। और पायलट कौन से थे आपके? ये पायलट इधर नहीं है, नहीं, पायलट कौन से थे आप, मतलब जिस पायलट के? इसमें कोई पायलट नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। इसमें ऑलरेडी एम्यूनिशनिंग, जो एम्यूनिशन
जो सेट करते हैं वो है एक्सप्लोसिव टीम है, ये एक्सप्लोसिव टीम। ओके। पायलट तो फिर जब ये फोटोग्राफ हो तो चले गए थे फिर अपने बेस में, अच्छा अच्छा। वो गोवा वगैरह या कोचिन शिफ्ट हो गए थे। अच्छा हाँ समझ गए। और सर आप थोड़ा किसी पायलट के बारे में बात कर सकते हैं जो आपके साथ काम किए थे, जिनका हाँ, पायलट सऊदी थे, बहुत अच्छे पायलट थे। हाँ, पायलट लेफ्टिनेंट फ्लाइट लेफ्टिनेंट सऊदी और एक लेफ्टिनेंट कमांडर सिन्हा थे, बहुत एक्सपर्ट पायलट, बड़ा दिलेर थे वो। फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतलब इंडियन एयरफोर्स से डेप्यूटेड। हाँ, इसके लेफ्टिनेंट कमांडर जिसको वहाँ इंडियन एयरफोर्स में थे, लेफ्टिनेंट कमांडर कहेंगे उसको, लेफ्टिनेंट कमांडर सिन्हा, सिन्हा। ब्रिलियंट पायलट। वो सबसे ज्यादा उसने काम किया। अच्छा और एक एक लेफ्टिनेंट भे थे। अच्छा। संतोष गुप्ता। हाँ हाँ, ये थे संतोष गुप्ता, और मैं भूल गया हूँ बाकी। उनका तो हमारे से वेरी क्लोजली एसोसिएटेड, हमारा तो उनसे ज्यादा ही रिश्ता था, क्योंकि हमारा प्ले उनसे संबंध था, लोड करना अनलोड करना जैसे वो कहेंगे। उनका तो काम है, रेडी हो गया, उनको सिग्नल दिया, कोकपीट में गए, फ्लाई, बस चेक किया, वो काम था। राइट। लेकिन उन्होंने रात दिन बम्बार्डमेंट बहुत किया, खुलना चलना, जो भी ये पोर्ट थे इनको डिस्ट्रॉय कर दिया था उन्होंने। कॉक्स बाजार। राइट। और ये सब बाद में आई मीन ऑल ऑफ दिस पीपल पायलट्स जो थे बाद में बहुत अच्छा रैंक पे भी गए थे। आई थिंक रियर एडमिरल बने, कॉमोडोर बने। हाँ, जो अपने ये एस प्रकाश थे, कैप्टन थे, उसमें फिर वो बने वाइस एडमिरल बने। और उसमें उनके जो ये पायलट्स के जो इंचार्ज थे, कमांडर ग्रेवाल, श्रीवाल। हाँ ग्रेवाल भी शायद वाइस या ये बने एडमिरल, वही सीनियर थे। और आप सर, आप नेवी में कितना साल तक काम किए? मैं तो 10 इयर्स किया। यस। 10 इयर्स के बाद में मुझे 2 रैंक बस प्रमोशन हुआ, फिर मैं प्रमोशन कम थे, तो मैंने तो बेटर ऑप्शन के लिए देन आई ज्वाइंड पब्लिक स्कूल, और आप तो उसको रिटायरमेंट से डबल सैलरी मिली मुझको वहां से। अच्छा। और आप हाँ, रिटायरमेंट से पहले कौन से रैंक पे थे सर? मैं पहले तो एंट्री में C2 था, फिर C1 QA3, उसके बाद फिर पीटीआई के लिए मैंने अप्लाई कर दिया, ब्रांच चेंज कर ली मैंने, अच्छा इंस्ट्रक्टर, फिर मैं इंस्ट्रक्टर बन गया था। अच्छा अच्छा। सो वो इंस्ट्रक्टर होते हैं इक्वल टू, ये आते हैं अपने आर्मी में जैसे ये सूबेदार वगैरह। अच्छा। हाँ, इनके क्योंकि इनका काम है उनको ट्रेनिंग देना, फिजिकल ट्रेनिंग देना, और स्पोर्ट्स से रिलेटेड है वो। फिर उसके उसी बाद उसी के बिहाफ पे मुझे सर्विस मिल गई बाहर। स्कूल में प्रोस्ट। स्कूल हाँ में बताइए। इनकम फिजिकल इंस्ट्रक्शन ही था या? हाँ, बाद में उसके बाद में फिर मेरा फिजिकल इंस्ट्रक्टर का काम रहा। हाँ, लेकिन वह टाइम में तक मैं क्यूए क्वार्टर आर्मोरर था, बट रिलेटेड टू द एमुनिशन और गन्स, ये था उससे संबंधित, उनको हैंडलिंग करना, उनको ऑपरेट करना या उनकी रिपेयर मेंटेन करना, यहां तक था मेरा उससे पहले काम। तो बहुत ही जबरदस्त तजुर्बा है सबसे। हाँ, बहुत। आईएनएस विक्रांत पे बैठे हुए या? हाँ, अब शायद मेरे साथ बहुत कम बचे होंगे लोग, क्योंकि मेरा तो 3 इयर्स का सर्विस था हार्डली, जब तक जस्ट। तो मेरी अभी नाउ आई एम 76.5 ईयर मेरी एज है। तो आजकल 76-75 तक बहुत कम पहुंचते हैं आदमी, तो बहुत ही कम बचे होंगे। और मेरी तो बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी थी ऑन द फ्लाइट डेक। मैंने तो सारा कुछ देखा है, कितने एरोप्लेन कब जाते थे, क्या करके आए क्या नहीं, वो सबमरीन भी देखा मैंने अपनी आंखों से, लेकिन उसको इन्होंने कभी मेंशन नहीं किया। मैंने भी कभी पढ़ा नहीं। आई मीन आपके हाँ, क्लासेस पहली बार नहीं, उसको मेंशन ऐसे को करते नहीं है ये, थोड़ी कहीं अपना वीक पॉइंट होता ना, उसको दिखाते नहीं भी तुमने उसको छोड़ कैसे दिया। तो लेकिन मैंने क्या, पूरी शिप कंपनी के ऊपर थी, उन्होंने सबने देखा था। और जैसे ही शोर मचा और हेलीकॉप्टर एक्शन में आया, वो इमीडिएटली दैट
सब मैंने सबमर्ज कर दी इमीडिएटली, इमरजेंसी सबमर्ज कर दिया था उसने। फिर उन्होंने बम भी गिराए वहां जाकर, एलईजे ने मेरे सामने बम गिराए, और उनका एक ट्यूब होता है बहुत बड़ा कनेक्टेड विद द एयर, वो वायर, वो भी डाला था, देखा थे भी कहीं है। फिर उनका कि वो चली गई, डिसअपियर हो गई। और विक्रांत ने तभी मैनोरिंग करना शुरू कर दिया, तो कभी टारपीडो एक्सपेक्ट कर दे टर्न, क्योंकि उस समय क्या करते हैं ये टर्न वगैरह करने लग जाते हैं, और क्योंकि टारपीडो फायर्ड है तो उससे एस्केप हो जाए। हाँ, फिर जिगजैग जिगजैग सेल करते हैं फिर और ये था। सबके तो स्ट्रेस्ड होंगे ऑन बोर्ड, आई गेस बहुत स्ट्रेस, है सब सेलर्स बहुत स्ट्रेस में होता है तब, आई गेस। ना, स्ट्रेस में कुछ नहीं था, स्ट्रेस में कुछ नहीं, सबको लाइफ जैकेट होती है, पानी में जाएंगे तो पानी में सेफ हैं। हाँ, उनको स्ट्रेस होता है जो इंजन रूम में अंदर नीचे होते हैं, इंजन रूम में होते हैं नीचे, लोअर डेक में जो होते हैं उनको थोड़ा सा वो रहता है, बट उनको भी जब ही होता है जब वो कोई उसको डैमेज कर दे, क्योंकि वहां से तो में कुछ लफड़ा होता है, बॉम्ब फटता है या कुछ ऐसा। क्योंकि इंजन रूम में अगर इंजन रूम में टॉर्पेडो लग गया फिर वहां तो वो तो एस्केप कर ही नहीं सकते। वाटर फ्लड, ऊपर से उसका बंद होते हैं रास्ते, उसका तो कोई रास्ता नहीं है फिर बचने का। हाँ, जैसे खुगरी में हुआ, हाँ, जो दोस्त हुआ ऑन द डेक वो सब एस्केप कर गए, अबेंडन कर दिया शिप, और जो अंदर नीचे थे इंजन रूम में दे कुड नॉट एस्केप, क्योंकि जो सब रास्ते होते हैं ना, हैच उसको बोलते हैं, हैच, वो सब बंद रखते हैं वार टाइम में, बिल्कुल टोटली बंद। और जो भी वो कुछ ही बचे, और कमांडर मुल्ला जो थे बेचारे, महेंद्र नाथ मुल्ला, वो अपने ब्रेव पर्सन, वो उसके साथ ही सेक्रीफाई हो गए। आप थोड़ा आपके खुद के बारे में, आपके खुद के फैमिली के बारे में बता सकते हैं कुछ लाइनें? हाँ, मेरा फैमिली, मेरा बैकग्राउंड एग्रीकल्चर है, तो मैं तो फिर उधर से स्कूल में चला गया था, तो मेरे बच्चों की शिक्षा वहीं हुई, बट उन्होंने कोई नौकरी पसंद नहीं करी। मैंने कहा भी उनको कि भी चलो एंट्री नेवी में, तो इन्होंने, क्योंकि वो पब्लिक स्कूल था ना, तो उसमें क्या बच्चों का दिमाग थोड़ा ऊंचा होता था, वो कहे कि नहीं छोटी ये सर्विस, तो उन्होंने एक तो रेडीमेड की करता है, एक एग्रीकल्चर का काम देखता है, दिस द बैकग्राउंड। और अभी मेरे दो बच्चे, एक जो लड़का था अभी ये अथर्व, ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा है, जिसने सेट करा है, इन द फर्स्ट ईयर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में है। वो एक ग्रैंड डॉटर है, वो कॉमर्स में है, 11th में कॉमर्स में है। और दो अभी जो छोटे जो ग्रैंड सन है, वो एक 9th में है और एक 6th में है। ये फैमिली है मेरी। मैं मेरठ में सेटल्ड हूँ, लेकिन मेरी खेती भी है, वहां भी चले जाते हैं, वहां भी करते हैं। मैं स्पेशली यहाँ रहता हूँ, फिर वो गाइड करने के लिए चला जाता हूँ। तो मैं भी बहुत रेपुटेड टीचर था अलवर पब्लिक स्कूल का, उसमें मेरा देखो बेस्ट टीचर मुझे मिला, सीबीएसई चेयरमैन ये फादर कुंदन कौन से बेस्ट टीचर अवार्ड मिल रहा है। तो स्कूल का कैरियर मेरा बड़ा अच्छा रहा, और मेरे पास स्कूल के सब मेरी फेसबुक में हैं, मेरे बच्चे बहुत मुझको लाइक करते हैं, मेरा ये लाइफ रहा। और आप मेरे पेज, मतलब फेसबुक पेज को कब फाइंड आउट किए सर? आपका अच्छा, आप मतलब मेरा जो पेज है वो आपको कब हाँ, मिला फेसबुक पे सर? ये तो मैं कई साल से फॉलो करता हूँ, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड हूँ ना 71 वार से, ऐसे मैं इंटरेस्टेड हूँ बहुत। मैं देखता हूँ जब भी मैं पढ़ता हूँ उसको, एंड जो मेरा होता है कोई आई ऐड समथिंग। इसीलिए मुझे आपके साथ फाइनली कनेक्ट हो पाया। आपका कमेंट मैं देखा इतने साल बाद, हाँ, मैं सोचा आपके साथ थोड़ा बात कर लेते हैं। हाँ, मैंने कई बार कमेंट भेजता हूँ, कैसे हुआ, पीछे क्या था, और हमारे जो, मतलब कमेंट्स आर मोर इम्पोर्टेंट क्योंकि आप लोग ग्राउंड में थे, कोई भी स्टोरी हाँ, इम्पोर्टेंट है। हाँ, वी हैव बीन ए प्रैक्टिकल पर्सन। तो वहां से हमने देखा, फिर सरेंडर कर दिया उन्होंने, फिर हमारे शिप से बोट गई, हम तो नहीं जा सके, क्योंकि हम तो वहां एक्शन में थे, रेडी थे, क्योंकि एनीथिंग में हैपन।
लेकिन कुछ वहां से कुछ सेलर्स गए और अपने वाइस एडमिरल कृष्णन गए थे, जब हैंड ओवर टेक ओवर है उन्होंने सरेंडर किया था नियाजी ने। जनरल अरोरा थे वहाँ। पिक्चर भी है जनरल नियाजी के हाँ, साथ surrender। उनका पिक्चर है वो, हाँ आपने देखा होगा वो। और सर बांग्लादेश वॉर का पार्टिसिपेशन के लिए कभी आपको बांग्लादेश बुलाया गया था डेलीगेशन के? नहीं, हमें नहीं बुलाया गया। उसके बाद तो हमें बस ये कहा था जो दोज हु वांट टू कम एंड सी द हाउ दिस हैंडिंग ओवर टेक ओवर सेरेमनी इज गोइंग टू बी हेल्ड, आप जाएं। लेकिन हम तो ड्यूटी पर थे, सो वी कुड नॉट गो। सर्विस नहीं सर, मतलब ये जो सर्विस ने नहीं बुलाया, नहीं नहीं कभी नहीं बुलाया बांग्लादेश। जो कुछ साल तक मतलब इवन टिल लास्ट ईयर जो हम्म। भारतीय फाइटर्स थे 71 उनको बुलाते थे फॉर। अच्छा, वो बुलाते थे, मुझ मेरे पास कभी नहीं आया क्योंकि मैं 10 इयर्स में आ गया था। हाँ, इसलिए तो वो जो पुराने हो गए थे ना उधर एजेड, उनको बुलाते होंगे जरूर। हाँ, Still sir, wonderful job that you did in 71. इसके लिए हाँ। हम लोग आभारी हैं सर। अरे बड़ी मेरा इट इज माई वही सर के आपने हमारे को याद किया, इंटरव्यू लिया, मैं तो बड़ा खुश हूँ। बहुत रिफ्यूजी बन के आए, तो मेरा जमीन जहां पर है वहां पर भी कई जो बांग्लादेश से आगे थे ना, वो इधर से इधर भाग आए थे रिफ्यूजीज। वो अभी गंगा के किनारे हैं। एक मुझे उसमें मिला, सबने तो बताया नहीं, एक सुबोध करके थे, सुबोध। तो मैंने उनको बताया भी, मैं मुझे कहाँ से है कि जी हम तो बोल गया कलकत्ता से हैं। अरे मैंने क्या, तुमने कलकत्ता से हो या बंगाल से, उधर से बांग्लादेश से? कि हम ईस्ट पाकिस्तान से। उसने बताया कहानी कि हम कैसे वहां से भाग के आए। सुबोध ने भी शेयर करी कि हम लोग कैसे छुप छुप के आए जान बचा के। ऐसे बहुत है अपने, आपको गंगा बेसिन में बहुत मिलेंगे, कलकत्ता में बहुत बहुत आपको मिले होंगे जो वहां से निकल ही आए थे। और वो आप देखो, उस एरिया ने उसको बहुत झेला है, रियली यू सफर, यू पीपल बहुत ज्यादा सफर किया। और अभी भी व्हाट इज हैपनिंग, नॉनसेंस। Complete हाँ, nonsense। दुख लगता अब है पता नहीं। मतलब 71 को बांग्लादेश में पूरा डिलीट किया जा रहा है, ये दुख लगता है। नहीं, क्या ये बांग्लादेश का ये सब बैड लक है, मैं बता दूं आपको। ये बहुत कुछ गलत हो जाएगा अगर वो नहीं संभले तो। राइट हाँ, बहुत कुछ गलत हो जाएगा। वो देखो, अगर सुधर जाए तो राइट, पाकिस्तान इज स्पॉइलिंग देयर माइंड। पूरा स्पॉइल कर दिया है ऑलरेडी। हाँ, इतना अच्छा भला देश को सब स्पॉइल कर रहा है। एक्चुअली हमें कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये लोग सुधर नहीं रहे, इनकी मेंटेलिटी ठीक नहीं है इन लोगों। हाँ, हाँ। थैंक यू सर, आपने जो किया ओके सर, बांग्लादेश इट इज माय प्लेजर। के लिए सर। मैं तो सोचता हूँ मुझे किसी ने याद किया, आपसे बात हुई बहुत दिन, कोई मैं तो भेजता रहता था लेकिन कोई सुनता नहीं, आपने किया तो मेरा एक और ज्यादा उत्साह आ गया मुझे। आप लोगों को अभी आगे आके बात भी करना चाहिए, इसलिए मतलब हाँ। मैं बहुत बड़ा मतलब क्या क्या बोलते हैं इसको, आभारी हूँ फॉर दिस सर। नहीं, आपकी बुक बहुत अच्छा काम कर रही है, वो जो आपका, आप इसके एडिटर हैं जो भी है, लेकिन आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसको स्प्रेड कर रहे हैं, भेज रहे हैं पब्लिक में। राइट सर। तो ये पब्लिक को जागरूक कर रहे हैं आप, ये बहुत अच्छी बात है। नहीं तो सब मतलब कोई याद नहीं रखेगा इसको, कोई। मीडिया का रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सर अगेन, एंड आई होप Okay, sir. फॉर यू। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सी यू। सी यू। ओके सर।